bit slippery. So, okay. So let me know once you are able to see my paint screen. Yes, no, maybe. Yes, now. Okay. So today we'll be understanding three main concepts of Hibernate. In that, what is the get method? What is the load method? So I'll try to relate it with real world examples for you all to understand it better. So let's start with the get method first. So we had discussed the architecture of Hibernate. So let me open up on which this, yeah, right? You're able to see my screen, correct? Okay, so let me replicate this back again. It's becoming a bit untidy. The black color is your Java program. My screen is visible and I'm audible to everyone. Thanks. And the orange color is now I am directly uh, this is the session now. Okay, now you all know session factory. Now directly I will zoom into session. This is my session object. Okay, this is my Java project, my Java application means my .java file. Okay, Java application. In that, this is a Hibernate session, and the green color is the database. We have three layers. Okay, and now in yesterday in the database we had created one table by the name. What was the table name? Any guesses? Which we did yesterday. We had made an entry by the name employee, and we had also inserted a record. We had another save method. So this table is there now, and table name is the class name, in all small, and e number. The attributes of that class becomes the, and we had inserted one record. Okay, now let's try to discuss this a little bit deeper. Okay, now if I rerun the application, I had stopped the application yesterday to run my other application. If I run my application again, will it allow it to insert the record 18? Yes, no, maybe. What do you say? We have made the ID attribute as the primary key, right? E number as the primary key. So when I run this code, will it execute successfully or will it throw an exception? What do you all say? Yes. What does Uday? Uday, what do you say? Did you follow the first episode of Hibernate? Did you understand it? क्या क्यों थ्रो करेगा एक्सेप्शन? है ना, डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी ना. So let's try to save it.
उसके पहले मुझे कोई चीज़ देखनी है जिससे मालूम पड़ेगा कि क्या होगा। ओके, अभी आप लोग की बात सही है। ये मैंने फाइल ओपन किया है लाइन नंबर 13 पे। देखो लाइन नंबर 8, 9, 10 तुम लोग JDBC से समझते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को? और कल मैंने लाइन नंबर 14 फिर एक्सप्लेन किया, राइट? अब बचा कौन सा, लाइन नंबर 13, तो आज वो मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन अभी। तो व्हाट इज द DDL ऑटो? इसके दो वैल्यू है, अपडेट है, क्रिएट है। क्या है, कितने वैल्यू है इसके? तो हमने क्या रखा है सेटिंग अभी? अपडेट। अपडेट में क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम रन करोगे, प्रीवियस डेटा वो रहेगा हर रन के ऊपर। ओके, तुम लोग को ये मालूम है क्या अपेंड मोड क्या है और राइट मोड क्या है फाइल हैंडलिंग के अंदर? अगर मैं फाइल को राइट मोड में ओपन करता हूँ फाइल राइटर से, सिर्फ फाइल राइटर यूज करके मैंने सिर्फ डायरेक्टली बनाया फाइल राइटर, FW इज न्यू फाइल राइटर, और कौन से फाइल से इसको हम लिखने वाले हैं, abc.txt। अगर मैं ऐसा करूं और करूं FW.write और कुछ भी लिख दूं, हेलो लिख दूं, और फिर FW.close कर दूं, तो जब मैं ये फाइल को ओपन करूंगा तो फाइल में क्या होगा? बोलो भाई, क्या होगा फाइल के अंदर? हेलो होगा, ठीक है। ये मेरे फर्स्ट रन पे ऐसा हो गया, जब मैंने फर्स्ट टाइम रन किया तो ऐसा मैंने लिखा था। जब मैं सेकेंड टाइम रन करने जा रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ वर्ल्ड, स्पेस देके वर्ल्ड लिखता हूँ। अब बोलो आउटपुट क्या आएगा? आयुश्वर, आयुश्वर, हाँ, सिर्फ वर्ल्ड होगा, हेलो हेलो कहाँ चला जाएगा? बाय डिफॉल्ट राइट। यस, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, फाइल को ट्रंकेट करता है। क्या करता है फाइल को? ट्रंकेट ऑन ओपनिंग। क्या करेगा वो? व्हाट डज ट्रंकेट मीन इन SQL? टू क्लियर एवरीथिंग, नो? ट्रंकेट बोले तो डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको बोलते हैं ट्रंकेट करना टेबल। तो वो क्या करेगा, ट्रंकेट करेगा, फिर वापस नया रिकॉर्ड लिखेगा, है ना? अब मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे हेलो वर्ल्ड के बाद ही लिखना है, तो मुझे उसको लिखना पड़ेगा अपेंड मोड में। कौन से मोड में? तो अपेंड मोड के लिए हम लोग क्या करते हैं फाइल हैंडलिंग में, यहाँ पर एक ट्रू सेट कर देते हैं, एक फ्लैग सेट कर देते हैं इधर फाइल के नाम के बाद में, और बोल देते हैं कॉमा ट्रू। तो कॉमा ट्रू से क्या हो गया अभी? कॉमा ट्रू से क्या ऐड होगा बेनिफिट? यस, नो, राइट? तुम लोग के साथ मैंने किया फाइल हैंडलिंग, नहीं किया? देखो, आई शो यू माय फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम फॉर द प्रीवियस बैच। देखो ये फाइल हैंडलिंग है, ठीक है, ये क्रिएट फाइल है। अब यहाँ पर देखो, ये देखो कोड क्या हो रहा है, ठीक है। तुम लोग के लिए अलग से कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखो हमने ये फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिया, और ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, चेक एक्सेप्शन। ओके, और हमने फिर क्या किया है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है ITP।
तो ITB फोल्डर में एक फाइल बन जाएगी shivam.txt, और फिर मैं फाइल राइटर के अंदर कुछ लिखता हूँ, राइट हेलो, और फिर उसको क्लोज कर देंगे ताकि सब कुछ राइट हो जाए। और सिस आउट कर देंगे फाइल रिट। अब बोलो आउटपुट क्या आएगा जब मैं फाइल को ओपन करूंगा तो? राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, क्या लिख के आया? फाइल रिटन। कौन सी फाइल में? ITP फोल्डर में एक फाइल बन जाएगी शिवम नाम की, है क्या? नहीं है तो रिफ्रेश करो इस फोल्डर को, रिफ्रेश किया, फाइल आ गई शिवम। शिवम के अंदर क्या है बोलो? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ तो बोलते रहो, मेरे साथ में रहो। ठीक है, अब वापस मैं जब नेक्स्ट टाइम रन करता हूँ, अब बोलो क्या होगा? और हेलो हेलो क्या हो जाएगा? हेलो क्या क्या हो जाएगा? तो क्या लिखा? हेलो निकल गया, वर्ल्ड आ। अब मुझे हेलो वर्ल्ड चाहिए तो क्या करूँ मैं? ये चल रहा है राइट मोड में, मैं उसको करूँगा ओपन अपेंड मोड में। किसमें करूँगा? अपेंड मोड। तो अपेंड मोड अगर मुझे करना है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? ट्रू। और फंक्शन यूज करना पड़ेगा अपेंड। क्या करना पड़ेगा? ओके। अब यहाँ पर हम बोलते हैं ऐसा। अब बोलो आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क? अभी अभी फाइल में क्या है? वर्ल्ड है। और अभी मैं ये कोड रन करूंगा तो क्या आएगा? फाइल रिटन, गो एंड चेक द फाइल। तो उसने उसके आगे लिख दिया, तो करंट डेटा को डिलीट किया, क्या फाइल ट्रंकेट हुई, क्या उसके आगे लिखना शुरू हुआ, अपेंड हो गया। तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट है। कौन सा वाला? जो मैंने अभी बताया है कि नाउ लेट्स गो टू योर ITP शिवम, ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास दो होते हैं। अगर मैंने लिख दिया अपडेट तो ये अपेंड मोड में चला गया, समझो में चला गया ये, यानी एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा, उसके बाद आप इंसर्ट करेंगे। अगर मैंने कर दिया क्रिएट, यहाँ पर मैंने क्रिएट लिख दिया, तो क्या होगी? टेबल ड्रॉप होगी, टेबल वापस क्रिएट होंगी और फिर इंसर्ट होगा। तो अभी अगर ये क्रिएट मोड में है तो क्या होगा? व्हेन आई रन दिस कोड क्या होगा? एम्प्लॉय टेबल ड्रॉप होंगी, एम्प्लॉय टेबल वापस क्रिएट होंगी, फिर वो अलाउ करेगा क्या मुझे इंसर्ट करना 18? क्या नहीं करेगा? will allow. Why will it allow? Because cardigan is created. But if I have now update, जैसे last time जैसा था, what did I have now? Update. अब क्या होगा? जो current, yes, so now let's go and check. तो यहाँ बजाते हैं, हमारे पास ये टेबल है हमारी कल वाली, तो इसमें ऑलरेडी 18 नाम का है, और DDL ऑटो क्या है? अपडेट है। तो फिर से 18 अलाउ करेगा क्या? लेट्स चेक। तो अपडेट क्या करता है? प्रीवियस वैल्यूज को रखता है। देखो इसमें 18 है अभी भी, तो मैं अभी आ रहा हूँ इधर और अभी ये कोड वापस रन करता हूँ, देखते हैं ये क्या करता है। रन एज जावा एप्लीकेशन, ये कोड टर्मिनेट होगा, देखते हैं क्या होता है। क्या बोल रहा है ये? कौन सा आ रहा है ये? माई एसक्यूएल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन, डुप्लीकेट एंट्री फॉर 18, करेक्ट? अरे ये सुनो, अब मुझे ये निकालना है तो मुझे दो ऑप्शन है मेरे पास। दो ऑप्शन क्या है? या तो विराट का जो नेक्स्ट नेक्स्ट विराट है, ये जो है इसका आईडी चेंज करो, सही है। अभी कुछ प्रॉब्लम? अभी नो प्रॉब्लम। या फिर एक ऑप्शन ये है कि क्या कर दो इसको, क्या कर दो इसको क्रिएट। तो इससे क्या होगा? टेबल ड्रॉप होंगी, जितने भी एंटिटी सब ड्रॉप होंगे, वापस क्रिएट होंगे, फिर इंसर्ट होगा, ठीक है।
तो अब मैं इसको अभी 18 ही रख रहा हूँ, 18, ठीक है। अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा? लेट्स चेक। तो एंड का प्रूफ क्या है? क्योंकि बिहाइंड द सीन्स क्या क्वेरी रन हो रहे हैं वो बताएगा इधर। देखो बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, पहले टेबल क्या हुई, फिर क्या हुई, और फिर इंसर्ट हुआ वहां पर। तो इसके लिए ये दो, ये उसका डिफरेंस था डीडीएल ऑटो का और डीडीएल अपडेट का, ठीक है। तो अगर एक बार आपने डेटा पंप कर दिया तो आपको 20 रिकॉर्ड पे क्वेरीज लिखने हैं, सिलेक्ट अपडेट डिलीट करना है। तो एक बार डेटा आपने बना के रख दिया, उसके बाद इसको जाके अपडेट कर देना। वरना अगर आप इसको क्रिएट ही रखोगे तो हमेशा हर टाइम पे वो डेटा को डिलीट करते जाएगा। तो इसको मैं अपडेट रख रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं रन करूंगा तो वो एरर देगा, तो फिर मैं यहाँ पर 19 कर दूंगा, तो ये अभी काम कर जाएगा, राइट। अभी कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि कोई प्राइमरी कंस्ट्रेंट वॉयलेट नहीं हो रहा है। कंसोल पे ओपन करके देखते रहना कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। अब ये इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा वो, ठीक है। ये फॉल्स और वो टाइम पास क्या है, वो ये है, तो इसको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बस शुरू में दिखाने के लिए हमने किया था। ओके, तो ये एक समझ में आ गया। ओके, अब ये जो 19 है, ये जो क्या बोलते हैं उसको प्राइमरी की है, वो कौन स्पेसिफाई कर रहा है? हम दे रहे। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई आई विल ओनली प्रोवाइड यू द नेम एंड द परसेंटेज, आप बाकी चीज को आप ऑटो इंक्रीमेंट करो, क्या करो आप? जे, जैसे जैसे हमने ये करा, ठीक है। अब ऑटो इंक्रीमेंट एक नया कंस्ट्रेंट है, तो जब भी कुछ भी, तो ऑटो इंक्रीमेंट एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट कैसे ऐड होता है? ऑल्टर से। ऑल्टर कौन सा कमांड है? डीडीएल है क्या, क्या है? ऑल्टर कौन सा कमांड है? डीडीएल का डीएमएल? हाँ, ऑल्टर इज अ डीडीएल कमांड। ऑल्टर, क्रिएट, ट्रंकेट, रीनेम, ड्रॉप, ये सब किसकी कमांड है? अब देखो मैं सिर्फ ये दो रिकॉर्ड जो चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिड आई प्रोवाइड द रोल नंबर, द एम्प्लॉय नंबर? आई वांट द कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली जनरेट द ऑटो इंक्रीमेंट फॉर मी। तो फिर आई विल कम ओवर हियर एंड टेल टू द आईडी कि आईडी विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड। तो उसके लिए है @जनरेटेड वैल्यू। सिर्फ लिखो और लिखो GEN, कंट्रोल स्पेस बार दो, जनरेटेड वैल्यू आ गया परसिस्टेंस वाला, वो ले लो, ब्रैकेट दो, वापस कंट्रोल स्पेस बार दो, स्ट्रैटेजी आएगा, वो ले लो, वापस कंट्रोल स्पेस बार दो इधर आके, और ले लो आइडेंटिटी। तो इससे क्या होगा, अभी आपका आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? आईडी। तो इससे, तो ये मैंने एक ऑल्टर स्टेटमेंट फायर किया था। जब भी ऑल्टर स्टेटमेंट फायर करेंगे तो फिर वापस आके टेबल को क्रिएट कर देंगे ताकि ये ऑल्टर भी उसके अंदर ऐड हो जाए। जब भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे टेबल के अंदर तो हम लोग क्रिएट पे काम करेंगे। अभी क्या होगा, जो टेबल एग्जिस्टिंग है वो ड्रॉप होंगी, नहीं बनेगी, और फिर जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो होगा 1 रोहित 900। क्या इंसर्ट होगा? 1 रोहित 900 और 2 राहुल 1000। तो कितने कितने ऑब्जेक्ट्स को मैं सेव कर रहा हूँ अभी? तो इसका आईडी क्या होगा रोहित का, एम्प्लॉय नंबर हमने दिया, नहीं, 1 होगा 1, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आईडी इज ऑटो इंक्रीमेंट, दिस इज ऑटो इंक्रीमेंट, दिस इज व्हाट, ऑटो इंक्रीमेंट। इसका प्रूफ क्या है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट है? जब हम कोड रन करेंगे तो वो क्रिएट टेबल एग्जीक्यूट करेगा ना। देखो अभी रन करता हूँ मैं, पहले एग्जिस्टिंग पूरा स्टॉप कर दो, साफ कर दो स्लेट को, run as java application. So now you see, now when it creates the table it will write primary key and auto increment, you see क्या किया उसने, की नंबर प्राइमरी की और क्या है,
दिख रहा है, और फिर 2 क्वेरी इंसर्ट हो गए, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 2, तो अभी अपने 2 एम्प्लॉय होना चाहिए, रोहित और राहुल, आईडी 1 और 2 के साथ। क्लिक करो इसके ऊपर। समझ में आ रहा है? यस, नो, मे बी। हाँ, तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर भी मेंशन्ड है, तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोग समझ जाओगे। तो ये मैंने एनोटेशन डाले हैं, देखो नीचे, देखो ये दिख रहा है एनोटेशन। ऐड एंटिटी क्या करता है? ऐड एंटिटी एट्रीब्यूट, जो भी क्लास है उसका टेबल क्रिएट करता है, ठीक है। टेबल का नाम क्या होगा? टेबल का नाम क्या होगा? क्लास के नाम। अगर आपको खुद का नाम चाहिए कि मुझे एम्प्लॉय नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए आईटीपी एम्प्लॉय, तो आप दे सकते हो ऐड टेबल, और उसमें आप नाम चेंज कर सकते हो कि भाई टेबल का नाम चाहिए आईटीपी एम्प्लॉय, सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, कंट्रोल शिफ्ट ओ, टेबल फ्रॉम परसिस्टेंट। अब ये टेबल, ठीक है, तो अब मैंने क्रिएट यूज किया है इधर, तो जो टेबल है वो ड्रॉप हो जाएगी, और जो नई टेबल बनेगी वो किसके नाम से बनेगी? जो नई टेबल बनेगी वो किस नाम से बनेगी? तो क्लास का नाम कुछ भी हो, आपको जो टेबल का नाम रखना है आप वो नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी रन फ्रॉम मेन, ओके, डोंट रन फ्रॉम हियर एंड देयर, रन फ्रॉम द मेन। तो क्या किया इसने, देखो आईटीपी एम्प्लॉय टेबल ठीक है हमारे पास, तो जब उसने ड्रॉप करने गया तो ये ड्रॉप ट्रू क्या क्या फॉल्स रिटर्न किया? फॉल्स, तो यानी एम्प्लॉय टेबल अभी भी है हमारे पास, है ना। तो अभी कितने टेबल रही हमारे डेटाबेस में? 2, कौन से कौन से? तो एम्प्लॉय डिलीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब ये डिलीट करने गया तो उसने बोला डिलीट आईटीपी एम्प्लॉय, वो टेबल थी नहीं। अभी जब उसको रिफ्रेश करेंगे डेटाबेस को, आपको 2 टेबल मिलेंगे, एम्प्लॉय भी और आईटी एम्प्लॉय, है ना। तो इसको आप मैन्युअली डिलीट कर दो कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं टेबल का नाम देता ऐसे, अगर मैं टेबल का नाम देता आईटीपी एम्प्लॉय, अब बोलो क्या होता? अब क्या नाम रखेगा वो रखेगा नाम आईटीपी, और जहाँ भी कैपिटल आएगा उसके आगे वो लगा देगा अंडरस्कोर, ऐसा नाम बनाएगा। क्या नाम बनाएगा? तो अब वो जब वो बोलेगा ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, क्या लिखेगा वो? आईटीपी अंडरस्कोर एम्प्लॉय, वो टेबल है क्या? नहीं है, तो क्रिएट कर देगा, तो इसका मतलब है कि आईटीपी एम्प्लॉय टेबल भी मिलेगी अपने को, राइट। ये टेबल ड्रॉप नहीं होंगी। इसके लिए टेबल का नाम केस सेंसे स्मॉल में रखो, क्योंकि इट इज इनसेंसिटिव, यू क्वेरी this or you query this is both the same, so I'll just not play around with it, let's keep it like this। तो ये टेबल ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। अब जाके इसको रन करके इसको इंसर्ट करके देखते हैं, उस टेबल में जा रहा है का वैल्यूज किया। तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास क्लास का, और टेबल्स का सारा हाइबरनेट मैनेज कर रहा है, देखो। अब ये रिकॉर्ड उस टेबल में चले गए, नए वाले टेबल, न्यू टेबल इज कंटेनिंग ऑल दिस रिकॉर्ड। अंडरस्टूड? ऐड आईडी, ऐड टेबल, समझ में आया एनोटेशन? ये समझ में आ गया? ऐड आईडी जनरेटेड वैल्यू यूज फॉर, टेल मी, चलो नॉट एबल टू सी माय स्क्रीन। ओके, ऐड कॉलम क्या है? जैसे हमको टेबल का नाम चेंज करना था तो हमने ऐड टेबल लगाए थे, कॉलम का नाम कि सर here the column name is ENO, here the column name is ENO, but in the table I wanted employee number, or here the column name is ename, in the table I want employee name, so you can give add column from persistence, and you can change the name of the column if you wish to. So if I say employee name, what will be the column name? Any guesses?
द कॉलम नेम विल बी, समझा? नहीं, कैपिटल एन आ गया ना, तो जहाँ कैपिटल होगा उसके पहले वो अंडरस्कोर लगा देगा और स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? आप लोग के लिए ये टास्क भी है कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि एक स्ट्रिंग लेना है यूजर से, और जहां जहां पर स्ट्रिंग में कैपिटल आएगा उसके पहले अंडरस्कोर लगा के स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है। तो इफ आई राइट अ स्ट्रिंग, if I give you the string as, take a input string as, so what will be the output if this is the input? Output will be सब स्मॉल में, कैपिटल कुछ भी नहीं, ऐसे कन्वर्ट करना है। तो टेक दिस प्रोग्राम and show it to me tomorrow, okay? So same thing it is using over here. So when I say employee name, so I can change the column name. तो यहाँ मैंने alter कमांड फायर किया है, जब भी alter कमांड फायर करेंगे तो उसको क्रिएट रखना हमेशा, ताकि वो पुराना ड्रॉप हो जाए, नया बन जाए। तो पुराना जो ई नेम के साथ जो टेबल थे वो ड्रॉप हो जाएगा और एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम वाला टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, पुराना टेबल ड्रॉप हो गया और नया टेबल क्रिएट हो गया। नया टेबल के अंदर जो कॉलम का नाम होगा वो एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम होगा। क्या बोल रहा है ये ई नेम कैसे आ रहा है? क्यों सेव नहीं किया था क्या आपने? आई डिड नॉट सेव इट, सॉरी गाइस, आई डिड नॉट सेव दैट, आई शुड हैव बीन स्मार्ट इनफ टू सेव इट। Now let's check over here. When I click on ITP employee, the column name will change. How was that? ऐसे कॉलम नेम तो ऐसे ही आ गया जैसे लिखा है, टेबल के नाम में आता है शायद वो अंडरस्कोर वाला, टेबल के नाम में अंडरस्कोर आता है, इसका तो ऐसे ही नाम आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ITP एम्प्लॉय, अब देखते हैं। तो टेबल के नाम में वो चेंजेस करता है, कॉलम के नाम में चेंजेस नहीं कर रहा है। लेट्स चेक। नहीं आ रहा है, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द डायलेक्ट। The dialect which I am using is for Hibernate 5, no? What if I change the dialect? If I change the dialect to 8, maybe वो features 8 वाले dialect के होंगे। Let's save it and let's run and check. Now let's come and let's check if it still works. And it is still ITP employee. Normally it will not accept the capital. See, I have named it as capital employee over here, but it is still taking a small over here. इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, शायद ये होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा, अगर ड्रॉप कर देते हैं इसको। अब रन करके देखते हैं, सेव ऑल हो गया है। Now let's check it out. We have a database which has a table, see, all small, so it doesn't take it in capital, it doesn't take the name in capital, it will keep it in small only. So even though if you give here capital, it will still take it as small. Okay, if I would make the class name as permanent employee,
Okay, don't give any table name, and I have to register this. Okay, so rename the file, and wherever there is employee, make it permanent employee. Okay, and go and do the registration over here. Okay, and here also. Now let's run this. Now let's see by what name it creates the table. As mentioned, it doesn't take the capital, so it should prefix it with an underscore. It's converting it into all small. Table name it is converting into all small. Maybe I'll show you all the case where it makes the capital into underscore. That also it follows at times. Okay, so we can change the table name. That was okay. Add transient means if you want a attribute to be a part of the class, but you don't want it to be stored in the database. So I want a attribute for calculation. Okay, let's say I want an attribute called private integer temp. Now I don't want to store this into the database. I want it in the class because I'll be doing some calculation on this. So if I now save this and I run this code, it will add temp also as a part of the. So temp also will be added as a column because each column of that table, each attribute, one column is added. For each attribute, one column is added. So you see temp over here. So temp also. So I don't want to store this in the database. I want it to be a part of the class, but not of the database. So you can mark it with add transient. Mark it with add transient means don't make this column in the database. So you can add which annotation to that, to temp at the rate from. So now if you go and run the code, it will be a part of the class but will not be a part of the table. Got it? So this is what they will ask you in the interview, about annotations. What does this annotation do? Or what annotation have you studied in Spring Boot Hibernate? So you can tell I've studied at that entity, at that table, at that ID, at that column, at that transient. Then we have relationship also, one to one, one to many, all that we have. But before that, I want to show you all get and load. Okay, so we have this Java application session and the database. So if I want to fetch now this data from the database, so I will say session. I have two ways: session dot get and session dot load. They both do the same job of selection. They both do the select query. So I have to first provide which class object I am going to fetch. So you say that object I am fetching will be of class employee, and then which is the primary key. So what will happen over here now? And I will store it into the employee class object, employee E1. Okay. So now what happens in such a case is this request goes to the session first. Okay.
It's like you can imagine that this is the showroom. This is the showroom, and this is the godown. And the customer comes. The Java application is the customer. Now the customer comes to the showroom and says, "I want a particular, okay, shoes, okay, some ABC brand, XYZ model, PQR size." Okay. So let's say he says, "I want a Nike Air Jordan size 9." So the salesman, what will he do first? He will search for this shoe in the showroom. If he finds it in the showroom, he will hand it over to the customer. If he does not find this shoe in the showroom, what will he do then? What will he do? Yes, no, maybe. He will go to the go down and then he will. So to going to the go down and coming back will take time. So till then, if this customer, if he goes back, he might wait or he might not wait. So there's a chance of losing the customer. So if you go to the go down and then in the go down, this will always be there. This whatever stock they are having, this will be there in the go down. So this is what how the get operates. Whenever I try to get an object, it will first search in the session cache. It will first search in the session cache. Is there any object? Is there any object with this primary key? Is there any object with key number 18? Okay, so whatever data will be of that person. Okay, it will search over here. If it finds the object in the cache, it will return directly from the session. It will not query the database because querying the database is an expensive process. It is an expensive process. It will the database company will charge you for each access. So the number of time you request data from the database, that much amount you have to pay. So now to make your application cost efficient, Hibernate includes a cache in each session. So every session has its own cache. So this is the session one. It has its own cache. There might be more sessions as discussed yesterday, and each will have its own respective cache. So session 2 will have session 2 cache. Each individual session will have its respective cache. So that object will be first searched in the session cache. If it is found, that is called as first level cache. So this session cache is called as first level cache. So if it is found in the session cache, it will return it from there. If not found, it will go to the database query, bring it in the cache, and then return a copy. So bring it in the cache. So if the object was not there, assuming the object was not there, a database query will be executed. Which query will be executed? Insert, update, delete, select, drop, truncate, alter. Which query? Yes, guys. Select query. So select query will be executed and that record will be fetched from the database and then stored in the a select query will be executed and that record will be stored in the cache. Okay, so that it executed the select query, the object data was returned, and now that data is stored in the cache at some address 1000.
and the customer is returned the reference of this object. So this E1 now is pointing to this 1000 over here. And this object has been fetched from the database. Okay, next time when a request comes for the same object, next time when the request comes that I want primary key 18, what do you think will happen? What do you think will happen, guys? Are you all there with me? Is Shivam there? Is Shivanjali there? What do you think will happen over here? When the next subsequent request goes for the same object, object 18, will it query the database or will it return from the session cache? So the request will come to the session. It will first search in the cache. Is the object found with primary key 18? Yes, found. It will return the same reference to this person. So now E1 and E2 are pointing to two separate objects for the same object. So if I do a SOP and say E1 equal to E2, what will it give me? True or false? Why true? Both the reference are pointing to the same object. Getting it? So get will make the execution faster or slower? Get will make the execution faster or slower? Faster. And will make it economical or expensive? How come it will make economical? How do you prove that? Because for the second request, it is not hitting a database query, correct? So how many times will the database query be displayed on the console? Once or twice? Once. And if the third object also requests for the same, third request also comes asking for the same object, now what will happen? Will it query from the database or will it return from the session? So how many times will the query be displayed on the console is my question. Once, twice or thrice? Database query is this. This activity has happened how many times? This activity has happened how many times is my question. Only only once, right? Okay. Let's say there are more records. There are lots of records, hundreds of records are there over here. Let's say now 45 Rohit and 900. Now the fourth request which comes, request for object 45. Now what will happen? Now can anyone explain me the roadmap? What will happen if the fourth request comes and it is asking for employee Rohit, ID 45? What should be the explanation? How will you explain this? Anyone? So it will first search for 45 in the session. Found or not found? Found or not found? Is 45 object there in the session? So will it query the database? Will it query the database? 45 objects found in the session, yes or no? So will it query the database? Why will it not query when it is not in the cache? It will go to the database and ask, no? It will go to the database and fetch from there. If it is not in the
showroom, it will go to the godown. Yes or no? You all are saying no for everything. Not in the cache. No, sir. Will it query the database? No, sir. Then from where will it get the object then? So it will go to the database and fetch the object and store it in some particular address in the cache. So which object is that? Session 2000. Which object is there? 2000. Which object? Rohit. And what will it return to the reference E4 now? What will it return to the reference E4? Which address? 2000. So now if I execute these four statements, E1, E2, E3, E4, how many times will the query be displayed on the console? Twice. Once for Virat and once for Rohit, right? Yeah. So now if subsequent 5,000 people ask for ID 45, will it execute the query 5,000 times? Only once, which is in the starting, right? So this is the beauty of your get. It makes it execution faster and economical. Okay. Okay. Do we have record 7 in the database right now? So if someone comes and requests for a record for this, someone fifth person comes and says, I want employee object 7. So can we give him? Do we have the 7 object in the database currently? So, so get will return null. If the object is not found, get will not throw an exception. It will return null. So what will be in E5 now? So get does not throw an error. If the object is not found, get will return you null. So if you SOP E5, what will it display? Yes, guys, it will display you null. Okay. So you can use get when you're not sure that object can be there, object cannot be there. I'm not sure. So that time you can use get because get will not throw an exception. The program will not terminate. If the object is there, it will give you the object. If it is not there, it will give you null. Make sense? Okay, so let's try to do it practically now. So let's say app for get, app for get. Okay, app for save, app for get. Remove all this. We have these two records in the database currently, right? Do we have some record in the database? Yes or no? Now, which is the table which we are following? Let's do one thing. Drop both the tables and we'll recreate them so that there is no ambiguity. So I'll drop both the tables. Now there are no tables in the database. Now when I run this code, what will be the name of the table? Who will tell me? What will be the name of the table? ITP. Who's saying ITP? Who's saying ITP employee? I've commented ITP employee. Table name will be permanent employee, right? So and how many records will be inserted over there? 2 records. Okay. So now I have the 2 records. So I go to the database. I see that I have a table by the name permanent employee, all small, and I have the data also in this.
I have the data also this. Okay. Now I will change the DDL auto to update. Why will I change it to update? Any reason? So that when I run the app for get, I am not inserting any records, correct? But will I get the two records from there on the database or no? Or will they be deleted? Hmm? When I run the code now, will I get the two records or will those be deleted? मिल जाएंगे, अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ और बोलता हूँ, अभी मैंने से फैक्ट्री बनाया, सेशन बनाया है क्या? सेशन नहीं बनाया, तो सेशन कैसे बनाते हैं हम लोग? यहाँ सेशन भी बना लेना, ठीक है। अब हम जाते हैं और बोलते हैं सेशन वन डॉट गेट, मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा चाहिए मुझे? रोल नंबर, उसको किस में स्टोर करेंगे हम लोग? ठीक है। सो विल इट क्वेरी द डेटाबेस? नाउ सेशन हैज जस्ट स्टार्टेड, सेशन पूरा खाली है। व्हेन यू स्टार्ट द सेशन इट इज ब्लैंक, सेशन में कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक है। तो जब मैंने क्वेरी किया मुझे वन ला के दो, तो वो ऑब्जेक्ट था क्या डेटा सेशन के अंदर? यस और नो? फाउंड इन सेशन और नो? यस बोल रहा है। यस कौन है भाई? वो कौन है? इसका लाइट टॉर्च मारो उसके ऊपर। कौन है भाई यस वाला, कौन है? तो विल इट बी इन द सेशन? यस और नो? नो। तो विल इट क्वेरी द डेटाबेस? इफ नॉट फाउंड विल इट क्वेरी डेटाबेस? ओके, सो डेटाबेस विल बी क्वेरी। तो जब डेटाबेस क्वेरी होगा तो डेटाबेस क्वेरी डिस्प्ले भी होगा, फिर डेटाबेस क्वेरी होगा और डेटाबेस डिस्प्ले भी होगा फिर, है ना? क्वेरी डिस्प्ले भी होगी कंसोल पे। बिहाइंड द सीन क्वेरी displayed on console. ओके, अब नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आती है सेम बंदे के लिए, अब बोलो क्या होगा? ओके, हम उसको फिर सिस आउट भी कर देते हैं ताकि उसका टू स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाए। इसका एम्प्लॉय, क्या स्पेलिंग है? एम्प्लॉय, अभी आउटपुट क्या आएगा इसका? एम्प्लॉय, स्पेलिंग लिखता है, आउटपुट क्या आएगा उसका? द टू स्ट्रिंग विल बी डिस्प्लेड फॉर द एम्प्लॉय, राइट? तो ये चार आउटपुट आएंगे। नेक्स्ट टाइम मैंने अभी रिक्वेस्ट भेजा वापस उसी एम्प्लॉय के लिए, तो क्या होगा? फाउंड इन सेशन और नो? फाउंड इन सेशन कैशे। ओके, शुड हैव रिटन सेशन कैशे रादर। तो क्या यस और नो? सेकंड टाइम जब किया लाइन नंबर 31 पे, तो फाउंड इन सेशन कैशे, यस और नो? यस। विल इट क्वेरी द डेटाबेस? if found in the session cache, will it query the database? It has queried no, right? So no. So will it display the query on the console? क्वेरी कंसोल पे डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा? सेकंड टाइम इधर, सेकंड टाइम इधर, जब जब उसने क्वेरी किया है तो डिस्प्ले का किया नहीं ना। जब किया नहीं तो उसका प्रूफ क्या है कि इसने नहीं किया है? उसका प्रूफ ये है कि कंसोल पर डिस्प्ले नहीं हुआ।
और फिर अगर मैं प्रिंट एलएन करता हूँ एम्प्लॉय 2 तो क्या होगा? इफ आई प्रिंट एलएन एम्प्लॉय 2 व्हाट विल हैपन? उसका टू स्ट्रिंग शो कर देगा, है ना? और अगर मैं अभी करता हूँ सिस आउट करता हूँ, दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो क्या आएगा? ट्रू क्या फॉल्स? क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, राइट? सो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए इस ऑर्डर में, राइट? लेट्स सेव इट एंड लेट्स चेक एंड सी इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो बस क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सब सही चल रहा है। ओके, देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से देखो, क्वेरी क्वेरी डिस्प्ले किया उसने, ठीक है, और फिर उसका टू स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दिया। क्वेरी डिस्प्ले किया, क्वेरी के बाद उसका टू स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दिया, राइट? फिर सेकेंड टाइम क्वेरी डिस्प्ले नहीं किया, डायरेक्ट टू स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दिया, तो और ट्रू दिखा रहा है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो क्वेरी सिर्फ उसने एक ही बार किया जब शुरू में लिया था, तब उसके बाद से आप जितने बार उसको हिट करोगे वो आपको क्वेरी नहीं करेगा। ये वाला नहीं, ये वाला। अभी आप 10 बार भी अगर ये करोगे, करेगा क्वेरी? 10 बार करेगा क्वेरी वो? कितने बार क्वेरी करेगा डेटाबेस से? अभी बोलो ये। शुरू में एक बार करेगा ना, पर क्योंकि 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 जब हम रन कर रहे, बार बार हम लोग ओपन कर रहे हैं ना, जब मेन रन कर रहे हैं तो लाइन नंबर 18, 19, 20, जब 22 पे आ रहा है तो सेशन वापस क्रिएट हो रहा है ना। तो हर टाइम पे रन पे ब्लैंक कर रहा है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेकर रख ले रहा है, बाकी टाइम। तो क्वेरी कितने बार डिस्प्ले होगी अभी इधर? एक बार क्या 8 बार? वही ऑब्जेक्ट ले रहा है। चेक करेंगे अनाज जावा एप्लीकेशन, चेक करके देख लो कि क्वेरी कितने बार डिस्प्ले हुई है। कितने क्वेरी डिस्प्ले हुई है? ओनली वन। ओके, इफ आई ट्राई टू फेच अ ऑब्जेक्ट विच इज नॉट देयर, 3 वाला है क्या डेटाबेस में? 3, 3 है क्या? तो क्या आना चाहिए? नल आना चाहिए, राइट? आया नल? तो पहले 3 को सर्च किया, नल आया, फिर 1 को सर्च किया, वापस क्वेरी लिखना पड़ा। समझ में आया? पहले 3 को सर्च करने गया ना, तो क्वेरी लिखा, फिर 1 को वापस सर्च किया तो वापस क्वेरी लिखा इसके लिए। और 3 था नहीं तो नल दे दिया, 1 था तो डिस्प्ले कर दिया। समझ में आ रहा है? गेट और ओके। अगला है लोड। लोड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो लेट्स विजुअलाइज ऐसा कोई एरिया है मार्केट का जिसमें एक रेस्टोरेंट है जो चाय सर्व करती है। तो उसने ऐसे टेबल लगा के रखा है, 4 4 लोग बैठ सकते हैं एक साइड में, ऐसा। ऐसे उसने टेबल लगा के रखे हैं, लोग आते हैं और चाय पीते हैं, चले जाते हैं। ऐसे उसके पास बहुत सारे टेबल्स हैं, समझो 4 टेबल है उसके पास। और हर टेबल के ऊपर एक फैन है। क्या है? हर टेबल के ऊपर एक फैन है। तो आई एम शोइंग दिस यू इन 2D, पर यू ऑल विजुअलाइज इन 3D। तो ये टेबल के ऊपर क्रॉस नहीं है, ये टेबल के ऊपर एक फैन है जो चल रहा है। तो आप उसको 3D में विजुअलाइज कर लो। तो अब कुछ लोग आते हैं और वो जो दुकान का ओनर है
वो समझता है कि ये लोग टाइम पास करने आए हैं, ये लोग कुछ ऑर्डर तो करेंगे नहीं, तो सिर्फ टेबल को ऑक्यूपाई करेंगे। तो लेट्स से कि एक अभी 4 लोग आते हैं 11 बजे। कब उन्होंने होटल में कब एंट्री किया उन्होंने? बोलो भाई। 11 बजे एंट्री किया और वो बैठे बस बातें कर रहे, टाइम पास कर रहे। तो वो जो ओनर है उसके पास सारे स्विचेस है। यहाँ पर जो काउंटर पे ओनर बैठता है उसके पास एक पैनल है, उसमें सारे फैंस के स्विचेस हैं। तो वो स्विच ऑन करेगा क्या? फैन नंबर 1 का। यहाँ पर आके लोग बैठे हुए, यस नो मे बी। अब तक इन्होंने कुछ ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, बस बातें कर रहे हैं। तो आर दे जनरेटिंग रेवेन्यू टू द होटल? इज द होटल बेनिफिटिंग फ्रॉम देयर प्रेजेंस? यस नो। अरे यार हम लोग कैसे लोग, शिवम कहाँ है? शिवम नहीं आया। तो शिवम, तो वो लोग 11 बजे आ गए तो वो फैन चालू करेगा क्या दुकानदार, होटल वाला? नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ना कुछ भी। अगर उन्हें ऑर्डर दिया होगा जिससे होटल को रेवेन्यू मिल रहा है, तब तो हम उनका फैन चालू करेंगे, फिर फैन का बिल कौन भरेगा फिर? ये टाइम पास वाली पब्लिक आती है बस। तो वो ऑन करेगा फैन को? नो। ओके, अब 11:30 बजे उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। क्या और क्या प्लेस किया? ऑर्डर। और बोला कि वाटर लेके आओ। कौन सा वाटर? जग वाला पानी, बिस्लरी भी नहीं। तो जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर भी रेवेन्यू जनरेट करने वाला है क्या? नहीं, तो वो फैन ऑन करेगा क्या? नहीं करेगा। 12 बजे उन्होंने बोला कि हाँ भाई कुछ सैंडविच लेके आओ और कुछ जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेके आओ और कुछ स्नैक्स लेके आओ, ऐसा उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया अच्छा खासा। तो अब वो ऑर्डर फैन ऑन करेगा क्या? दुकानदार बोले हाँ अभी ये लोग कस्टमर लग रहे हैं, तो फैन को ऑन कर देगा, राइट? तो ऐसे ही लोड क्या करता है? लोड, हम लोग क्या करते हैं बाद टाइम पे, चीजें ले लेते और उसको यूज करते नहीं है। तो इफ यू ओपन पीपल्स वार्डरोब यू विल सी दैट उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमने पहने भी नहीं है बट लेके रखे हुए हैं। तो लोड क्या बोलता है कि जब आप यूज करेंगे तब आपको मेमोरी एलोकेट कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लोग ले लेंगे और यूज तो करेंगे नहीं। तो क्या होता है इसके अंदर लोड के केस में? ठीक है, फिर वापस ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। लोड के केस में क्या होता है? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है वापस ड्रॉ करने में, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है? अरे बोलो। और ये क्या है? और सेशन 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 फैक्ट्री तो शुरू में चला हुआ, सेशन कर दे बस। ठीक है। और ये क्या है? डेटा। तो उसमें हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, इसमें ई नंबर, ई नेम और सैलरी करके 3 कॉलम है। ठीक है, अभी हमारे पास उसमें कितने रिकॉर्ड है? 2 रिकॉर्ड है। 1 रोहित 800 और 2 राहुल 900, है ना? ये हमारे पास 2 रिकॉर्ड है। अब उसने बोला सेशन को कि सेशन मुझे लोड करना है, सिंटैक्स दोनों का सेम है, एम्प्लॉय डॉट क्लास का ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो क्या प्रोवाइड किया उसने? क्या रिक्वेस्ट भेजा? और कौन पॉइंट करेगा उसको? उसको एम्प्लॉय E1 पॉइंट करेगा, राइट? यस और नो? तो अभी वो पहले वो कहाँ सर्च करेगा उसको? डेटाबेस। बहुत बारीक, कौन है ये? अरे पहले कहाँ सर्च करेगा? सो रहा है, बैठे बैठे सो रहा है। सेशन कैसे में? तो मिला क्या?
कोई मिला ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि सेशन अभी स्टार्ट हुआ है ना, फिर वो क्या करेगा, क्वेरी करेगा किधर, वहां से ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ठीक है, तो अब वो क्या करता है कि, हाँ अभी समझो, अब ये था लोड का लॉजिक, इसके एक सा लॉजिक था, ये किसका लॉजिक था कि पहले सर्च करेगा सेशन कैशे में और फिर जाके सर्च करेगा डेटाबेस में, वो था गेट का लॉजिक। लोड का लॉजिक थोड़ा अलग है, वो पहले सर्च करेगा वन है क्या कैशे में, वन है क्या कैशे में, नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना लेगा, नो आर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके जावा का, क्या बना लेगा, प्रॉक्सी प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना लेगा, ई एन ओ, ई नेम और सैलरी। सैलरी किस टाइप का है, डबल, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है डबल का जावा में, अरे बोलो, और ई नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल, और इन ई एन ओ किस टाइप का है, उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नहीं जीरो नहीं, हमने ऑलरेडी बोला है ना आपको कौन सा चाहिए एम्प्लॉय नंबर, तो वो उसका इन ई एन ओ वहां से डाल देगा वो, तो आईडी एट्रीब्यूट वो डाल देगा वहां से, बाकी सब डिफॉल्ट लेगा, बाकी जितने भी है ये सब एक्स्ट्रा जो भी है वो डिफॉल्ट डालेगा, पर जो आईडी एट्रीब्यूट है वो कहाँ से डालेगा, यहाँ से जो आपने यहाँ पास किया है ना, अगर उसने टू पास किया होता तो टू रहती थी। अब यहाँ पर उसने एक एड्रेस पे प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना लिया, कौन से एड्रेस पे, 1000 पे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उस प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न कर देगा E1 को, तो समझो E1 11 बजे रिक्वेस्ट किया E1 ने, अब E1 ये सिर्फ लेके बैठा है, कुछ यूज नहीं कर रहा है उससे, कोई गेटर सेटर कुछ कॉल नहीं कर रहा है, बस लेके बैठा है, ठीक है। 11:30 बजे E1 को याद आया, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, 11:30 बजे E1 बोलता है SOP E1 डॉट गेट ENO, क्या बोलता है वो, क्या बोलता है, गेट ENO, तो इसका ENO क्या है, अभी ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है ना वो, तो जब वो 11:30 बजे जो चीज मांग रहा है वो चीज ऑलरेडी प्रॉक्सी के अंदर है ना, तो तभी भी वो क्वेरी नहीं करेगा, देखो क्वेरी अभी तक होल्ड है, क्वेरी अभी भी डेटाबेस को नहीं कर रहा है, वो बोले मैं ये बंदा टाइम पास है, ये मंगा लेगा पर यूज करेगा नहीं, ठीक है। अब अगर ये जो है लोग अगर आते बैठते पानी पीते निकल जाते, तो सेठ क्या करेगा, बस प्रॉक्सी दे देगा उनको, बैठो जाओ, डेटाबेस को क्वेरी नहीं करेगा, मेरा अब तक कॉस्ट लगा नहीं है, क्योंकि मेरा कॉस्ट कब लगता है, कॉस्ट कब लगता है, जब डेटाबेस को क्वेरी करते हैं तो वो एक्सपेंसिव है, तो अगर उन्होंने सिर्फ 11:30 बजे जाके पानी मांगा, तो कुछ उनको सेट कुछ सर्विस देगा नहीं, फैन वैन चालू करेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे मेरे लिए, तो ओके, फिर उन्होंने बोला कि 12 बजे देखते कि नाम क्या है इस बंदे का, तो उसने क्या बोला, SOP E1 डॉट गेट ई नेम, अब लोग एक्चुअली अभी यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, करेक्ट, अब एक्चुअली ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं ना, तो अब वो जब एक्चुअल यूज होगा, तब वो डेटाबेस को क्वेरी करेगा, भाई इसका वन का एक्चुअल डिटेल्स दे दे, तो वन के एक्चुअल डिटेल्स क्या है, तब जाके वो पॉपुलेट करेगा उसको, वन तो ऑलरेडी था उसके पास, बचा कुचा जो था ना, वो तब जाके उसको पॉपुलेट करेगा, तो उसको बोलते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, तो वो, हाँ तो वो क्या कर रहा है, उसको डिले कर रहा है इनिशियलाइजेशन को, तब तक जब तक एक्चुअल तुम यूज नहीं करते, जब यूज करेंगे तब मैं क्वेरी करके आपको कर दूंगा, तो अब जब वो बोलेगा गेट ई नेम, तो आउटपुट क्या आएगा, रोहित नहीं, गेट ई नेम बोला ना, तो नॉन नॉन आईडी एट्रीब्यूट के अलावा जब आप कुछ चीज मांगोगे तब जाके वो क्वेरी करेगा, वरना क्वेरी करेगा नहीं डेटाबेस को, तो उसे एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट दे देगा,
तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। ठीक, अभी क्या करते, कभी हम लोग क्या करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना देते, उसमें से यूज करते सिर्फ 3-4, यूज कितने कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, तो बचे हुए 97 ऑब्जेक्ट सारे क्या है, सिर्फ सारे क्या है, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है, जो कि मेमोरी, जीरो मेमोरी ले रहे, तो मेरा एप्लीकेशन का मेमोरी कंजम्पशन बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये सब प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है, कुछ काम के नहीं है ये। जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट यूज में आएगा तब हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे। समझ में आया तुम लोग को ये क्या है लॉजिक, इसको समझ में आया प्रॉक्सी का लॉजिक, और हु कैन एक्सप्लेन दिस लोड का कॉन्सेप्ट टू मी? हाँ, हु कैन एक्सप्लेन मी द व्हाट इज लेजी इनिशियलाइजेशन? बोलो, एनीवन? शिवांजलि, यू देयर? और कौन कौन है? और कौन है जो एक्सप्लेन कर सकता है? अपर्णा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एवर यू हैव अंडरस्टूड सो फार by what I mean by lazy initialization, and how does Hibernate improve the memory utilization? Uday? तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो तुमको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो लोड का भी ले लेते हैं। कौन लोड? ठीक है, लोड का और गेट का लॉजिक तकरीबन सेम ही है। ठीक है, तो अभी देखो मैं लोड कर रहा हूँ, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, सेशन पूरा ब्लैंक है, तो वो होगा क्या मेमोरी में, तो क्या करेगा वो, यहाँ पर क्या कर देगा वो, और उसका रेफरेंस रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो फाउंड इन कैश है नो, तो क्या करेगा, नो। डेटाबेस क्वेरीड, डेटाबेस क्वेरीड, नो। व्हाट विल इट डू, व्हाट विल इट डू, क्रिएट proxy object with with which attribute, please unmute yourself, so the उसका बैकग्राउंड में कुछ, with id attribute and rest सब डिफॉल्ट वैल्यू है ना, जीरोज और नल, और वो रिटर्न कर देगा। वेल द क्वेरी बी डिस्प्ले ऑन द कंसोल, नो, क्योंकि क्वेरी किया ही नहीं है, राइट। ओके, अब जब अगर वो बोलता है एम्प्लॉय का मुझे गेट ई नंबर चाहिए, विल इट क्वेरी? व्हाई नो? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट वो है ना, उसके बाद एम्प्लॉय नंबर तो है, तो वो दे देगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब अगर मुझे लगा, फिर मैंने सिस आउट किया, ठीक है, सिस आउट लिखा, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, फिर भी लिखा, तो ये डिस्प्ले होगा कंसोल पे। और फिर मैंने जब उसको बोला कि भाई चल देखते हैं नाम क्या है इस बंदे का, पूछता है कि नाम क्या है या सैलरी क्या है, अब होगा क्वेरी एग्जीक्यूट। यस, नाउ क्वेरी द डेटाबेस, राइट। उसका प्रूफ क्या है क्वेरी द डेटाबेस का, उसका प्रूफ क्या है कि डेटाबेस को क्वेरी हुआ है, एसक्यूएल क्वेरी विल शो ऑन कंसोल, है ना, ऑन कंसोल। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, पहले क्या डिस्प्ले होगा, एफएसडी डिस्प्ले होगा क्या पहले क्वेरी डिस्प्ले होगा?
पहले क्या डिस्प्ले होगा, एफएसडी क्या क्वेरी? बोलो। बोलो भाई। देखो यहाँ पर सेशन शुरू हुआ है, पूरा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं उसके अंदर। जब वन मांगा तो वो वन क्या करेगा, वन को एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा जिसमें सिर्फ क्या होगा, आईडी एट्रीब्यूट होगा, बाकी सब डिफॉल्ट वैल्यू होंगे, जीरो और नल्स होंगे। गेट ई नंबर करेगा तो क्या देगा वो मुझे, आउटपुट क्या देगा? हाँ, आउटपुट क्या देगा? आउटपुट क्या रहेगा, ई नंबर क्या है उसका? वन। विल द डेटाबेस बी क्वेरीड? नो। फिर एफएसडी आ जाएगा आउटपुट में, तो आउटपुट क्या होगा, एफएसडी। और फिर जब बोलूंगा गेट सैलरी, तो अभी क्वेरी शो होगा डेटाबेस पे, और फिर आउटपुट क्या आएगा, क्या सैलरी प्रिंट उसकी, वन की सैलरी क्या है, 800 है क्या? वन की सैलरी कितनी है, कितनी है, 900। तो क्या आएगा आउटपुट, तो इसका मुझे बताओ ट्रेस द आउटपुट क्या है, पूरा पूरा। हाँ, ओके फिर से बताओ, फिर से बताओ। ओके, ओके सो एक मिनट चलो मैं लिख देता हूँ, एम्प्लॉय नंबर। हाँ बोलो अभी क्या बोल रहे हैं, आउटपुट क्या आएगा, मुझे पूरा प्रॉपर आउटपुट ट्रेस करके बताओ। बताओ और आउटपुट क्या होगा, पहला 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 आउटपुट क्या आएगा, उसके आगे का एप्पल ऑरेंज कैरेट रेडिश, एम्प्लॉय नंबर कोलन वन। ठीक है अभी दूस ओके, और फिर तीसरा, तो ये तीन आउटपुट आएंगे सिर्फ, है ना? और इनका ऑर्डर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है ना? तो कंफर्म कर लो, तो तुमको लोड समझ में आ जाएगा, कंफर्म करो तो वो लोड समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो पहले क्या आया, एम्प्लॉय नंबर वन करेक्ट आया, फिर क्या आया, एफएसडी, फिर क्या क्या क्वेरी किया, तो क्वेरी कब क्या, जब एक्चुअल यूज किया ना, तब क्वेरी किया, और फिर नीचे क्या दिखा दिया, अगर मैं ये नहीं करूं तो क्वेरी होगी डिस्प्ले, क्वेरी डिस्प्ले क्यों, क्यों नो, तो वो डेटाबेस को क्वेरी तब करें जब ऑब्जेक्ट यूज करेंगे आप, सिर्फ ला के रख लेंगे तो मेमोरी देगा नहीं। देखो अभी यहाँ पर सिर्फ क्या करेगा वो, आपको क्वेरी करेगा ही नहीं डेटाबेस, किया, तो इसको बोलते हैं लेजी इंस्टेंसिएशन या लेजी इनिशियलाइजेशन। वो लेजी है बहुत, जब एक्चुअल काम पड़ेगा तब देखेंगे, वरना मजे करो। ठीक है बच्चे लोग, एग्जाम है तब पढ़ेंगे, वरना कुछ मत करो ऐसा। एडमिशन लेके रख लेने का, अपना एग्जाम फॉर्म भर के रख देने का, जो लास्ट डे रहेगा तब पढ़ाई करेंगे, तो ये से बच्चे क्या क्या बोलेंगे ऐसे बच्चों को, लेजी। तो वैसा ये लेजी करता है ये, समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? और ये जो है अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो एक्सेप्शन थ्रो करता है। देखो अभी थ्री है क्या हमारे पास, थ्री है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये कहाँ से आ गया, अरे ये क्वेरी नहीं किया ना अपने, तो उसे बनाया, उसने प्रॉक्सी दिया ना सिर्फ, ये तो बना के प्रॉक्सी दिया ना। हाँ हाँ, जब यहाँ जाएंगे ना तब आएगा, है ना?
ये तो प्रॉक्सी के लिए कोई डेटाबेस को कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी है ना। हाँ, सेशन में क्रिएट करके देगा, तो वो डेटाबेस पे हो ना हो उसको संबंध ही नहीं है उससे। अब देखो, अब ये बॉम्ब मारेगा, कभी वो जाएगा 3 का लाने को तो बोलेगा 3 तो है ही नहीं डेटाबेस में, है ना, क्या बोल रहा है, आया दिख रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है। तो इसके लिए ये तभी यूज करो जब आप कॉन्फिडेंट है कि ऑब्जेक्ट है, और गेट आप तब यूज कर सकते हो जब आपको डाउट है होगा क्या नहीं होगा, तब गेट यूज कर सकते हैं, बट आपको लोड कब यूज करना है जब आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे। समझ में आ गया ना दोनों कॉन्सेप्ट। तो देखो मैंने यहाँ भी उसको एक्सप्लेन किया है इस नोट्स के अंदर, तो देखो अभी ये मैं नोट्स में एक्सप्लेन किया है, गेट और लोड। ठीक है, पहले यहाँ देखो, ये पहले गेट किया है, गेट रिटर्न्स नल इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड in database and cache. Use if you are not sure. Get will first look in the session cache, that is the shop. If the object is found in cache, it will not hit the database, that is go down. तो ऐसा देखो 101 को मैंने हिट किया तो क्या करेगा ये, we will first try to search for 10 object in session cache. If not found, it will query select the database, sign of which is query will be printed on the console and fetch the object and store in the session cache. जब next time 101 को हिट किया, when subsequent GET request is sent to the same 10 object, it will first search in the session cache. If found, it will not query the database. Hence, no select query will be printed on the console. And the return the existing object from the cache. और जब S1 S2 दोनों को कंपेयर करेंगे तो ट्रू आएगा। समझ में आ गया। अब जब 177 नहीं है तो डेटाबेस को क्वेरी करेंगे, करेक्ट। लोड क्या करता है, लोड throws object not found exception. It will not return null. Use when you're 100% sure. It returns a proxy object that is called lazy initialization, but will not hit the date, but will hit the database only when the object is invoked. ठीक है, like to string या getter setters except the get id, है ना। अरे बात समझ में आए तुम लोग को ना। हाँ बोल रहे ना, ना बोल रहे।